हो गया है, बैंक अकाउंट इज रेडी। हाँ हाँ, वो तो बहुत पहले से रेडी है। मेंबरशिप फी will come and we can create a phone pay thing so that we can create everything. Yeah, phone pay, Google Pay, we can the facility we can create so that they can straight away pay to that phone pay or via Google Pay they can pay. Mm-hmm. Because most of the people have shifted to phone pay, Google Pay. So 2,000 rupees or 1,000 rupees or 500 rupees, whatever 4 categories of fees we have fixed. I'll discuss with you. So you can finalize upon that. So once you finalize, that membership fee will come to that account by phone pay, Google Pay. ये अपन ने जो हमने आपको ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट जो है ना, जो उसके रूल्स अपन ने शेयर किए थे, उसमें जो फीस है वो हम उसी को क्यों ना एज इट इज रखें? सर, normal across the people, what is comfortable for everyone. So I have made four categories. अपन एक बात कर लेते हैं और फिर अपन जो है ना उसमें जो रूल में भी वो चीज डाल देंगे. It could be other way around, both ways also. 2,000 rupees. 3 categories are done. So below kids below 18. So until 10th standard 500 rupees. CFD kids. Then CFD Yuva, that is until 16 to 18 years. We can keep 500 or 1,000. Then more than 18 years, it is 1,000 rupees, and for office bearers, it is 2,000 rupees. Okay, I think no harm. We can make it final, no issue. Yeah, sir. So until और इसको जो अपन कह रहे हैं, इसको अपन अपने रूल्स को भी अमेंड कर देंगे अकॉर्डिंगली. Yeah. क्योंकि रूल कैन बी अमेंडेड है, उसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. So and internship, जो भी internship कर रहा है, they have to go for membership. So whether it is a small kid or very elderly person, just like Aadhaar number, they will have one number throughout their lifetime. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. हाँ, बिल्कुल ठीक. So now and any person who is doing internship with us, they have to pay the membership fee. First they have to join as members, then only can program is free. Whereas membership will come with 500 rupees or 1,000 rupees. वो तो वही membership तो वही रहेगी ना. किड का है तो ये है, वो है, वही same rule should be followed. Correct. 500 until CFD kids, CFD Yuva, then more than 18 years CFD, then office bearers 2,000. हाँ, तो इसके जो है ना कुछ बैनर्स बना दें which could be shared also and this would be available on your website also. एंड मुझे लगता है कि इसमें ऐप और उसके ऊपर थोड़ा सा अपन फास्ट काम करें. तो हमारा ऐप के साथ आइडेंटिटी कार्ड में एक कोई कमेटी बना दिया जाए जिसमें कि लोग जो है फर्म वगैरह से नेगोशिएट. दिस इज वेरी सिंपल. सो एनी पर्सन लॉग्स इनटू आवर क्राइम फ्री भारत ब्लॉग. गूगल फॉर्म इज ऑलरेडी रेडी. गूगल फॉर्म रेडी है मेंबरशिप के लिए. And even if they want simpler thing, they can just type their name. मेरा ये कहना ये है कि लिंक्स जो है की जगह यदि हम इसे ऐप में कन्वर्ट कर दें तो दैट विल बी ए बेटर थिंग, राइट? क्योंकि लिंक जो है ना, कोई भी लिंक क्रिएट कर देगा, पीपल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे. आपके लोग ही जो ना धंधे चालू कर देंगे, बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि साला ये लिंक जो ना, लोग तो यही मानेंगे आपकी जेन्युइन लिंक है. आपसे जुड़े लोग जो है ना दूसरी लिंक को क्रिएट करके, सिमिलर लुकिंग लिंक को क्रिएट करके और फर्जी मेंबरशिप और वो सब कर देंगे तो क्या कर लोगे आप? No, it is difficult, sir. Not possible. Why? Because Google blog will have a two-factor authentication. Is two-factor authentication में Google Authenticator app will use. So Google Authenticator app, without Google Authenticator app, without the handset, मतलब OTP नहीं आएगा. Without the handset, logging into the account is not possible. Google Authenticator app. मेरा ये अपना एक काम करते हैं अपन. We can have n number of options, right? एक ऑप्शन जो अभी रेडी है वो वाला कर ले, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात है कि फॉर्म में भी जो है ना अपन एक काम ये करें कि उसको लंबा ना बनाए, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं कि लेवल 1 मेंबरशिप, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस तरीके से किया जाए जिसमें हम उनको फिजिकल ट्रेनिंग की बात भी करेंगे. इट इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ IT ट्रेनिंग, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ जो ये लोग कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ ए फिजिकल ट्रेनिंग जिसमें अपन पुलिस या डिजास्टर मैनेजमेंट या इन लोगों के बच्चों को उनको यूज करेंगे एंड देन दे विल बी जो है ना प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग राइट ऑन द ग्राउंड. तो हम जो है ना उनको क्राइम फ्री भारत के पावरफुल वॉलंटियर्स के लिए कोशिश करेंगे. तब तक हम कोशिश करेंगे कि नियम कानून ऐसे बना दें
so that they can start getting revenue from there. और ये रेवेन्यू आज जो कमा रहे हैं उससे ज्यादा रहेगी, राइट? सो मेनी ऑफ देम दे वुड बी हैप्पी टू बी फुल टाइम डूइंग दिस। यदि मान लो जो सैलरी में उनको, यदि सैलरी उनको 15,000 की मिल रही है और वो थ्रू क्राइम फ्री भारत वॉलंटियरशिप यदि वो 25,000 और 30,000 कमा रहे हैं तो वो फालतू में जो है ना नौकरी में क्यों अपना समय खर्च करें? सर एक मिनट, नाउ दिस ऐप बनाने के लिए वी रिक्वायर सम रिसोर्सेस, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज फर्स्ट विल जनरेट रेवेन्यू एंड लेट द मनी कम टू द CFD अकाउंट। तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल, देन इट साउंड्स वेरी लॉजिकल, लेकिन इसको अपन चालू करें, मतलब जो है ना, मतलब अब बहुत हो गया है तो अपन वो लिंक सभी जगह भेजें और टू लेवल ऑथेंटिफिकेशन जरूर होना चाहिए जिससे गड़बड़ी ना हो पाए, राइट? And we will have a QR code wherein any person can cross verify with the portal, और portal से cross verify कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो एंड द लिंक, और जब आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो वो पहले आपकी आइडेंटिटी को क्रॉस वेरीफाई करेगा, तब जो है ना वो पोर्टल में आपको एक्सेस अलाउ करेगा। हाँ सर, सो रिगार्डिंग दिस वी विल हैव ए गूगल मीट समटाइम टुडे इवनिंग। वेरी ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट टाइम शैल वी हैव? तुम्हारे हिसाब से क्या अच्छा रहना चाहिए? व्हाट्स योर सजेशन? समवेयर बिटवीन 4 to 4:30। ओके, लेट्स फिक्स इट एट 4 o'clock. Yes, sir. Because most of the people will be engaged after 6 o'clock. And let's keep it at 4 o'clock. Yeah. Otherwise, we can have a discussion with coordinators and what time they will be free. देखिए, कोऑर्डिनेटर को ज्यादा कुछ काम करना नहीं है, जो मेन क्रिटिकल लोग हैं वो बात कर लें। क्रिटिकल कोऑर्डिनेटर में रिमेन इन लिसनिंग मोड, राइट? और यदि वो कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हाथ उठा के वैल्यू ऐड कर दें। Sure, sir. So, मतलब they will not be enjoying that critical decision making. Critical decision तो अपन को ही करना पड़ेगा। बात आप समझ रहे हैं ना? Sure, sir. और जो अपन ये डिस्कशन करेंगे इसको रिकॉर्डेड करके वी विल अपडेट ऑन द क्राइम फ्री भारत, सो दैट हमारे डेलिब्रेशंस की भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे अपने डेलिब्रेशन में जिसको हम पब्लिकली ना कह पाए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? सर आई थिंक अगर मेरा एक राय है सर, बिकॉज इवन इफ द बेस्ट ऑफ द मूवीज सैकड़ों लोग काम करते हैं, 2 साल के लिए काम करते हैं और 3 घंटे का मूवी बनता है। मतलब आफ्टर ऑल दैट एफर्ट, सो मच एडिटिंग एंड देन ओनली थिंग इज रिलीज्ड. So even if our videos have to go viral and have to reach masses, I think proper editing is required. Then only we can publish. अपन एक काम कर सकते हैं कि उसकी जो है ना उसकी एडिटिंग करके अपन एक ग्रुप को बनाएं जो कि यही काम करे, तो अच्छी बात है। फिर उसको अपन एक काम कर सकते हैं। बिकॉज व्हाट आई फील, देखिए हमारा इसमें कहना ये है कि कल nobody should be in position to say कि हमने कोई अलग बात कही थी, राइट? We can always amend and correct and change our decisions, right? But that was the earlier decision, now this is the revised decision. लेकिन let it remain stay on the record कि हमने पहले क्या decision लिया था और बदले हुए with the change scenario we have modified our decision. There is nothing so great about it. Are you getting me? Yes, sir. क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि देखिए अब इसमें बहुत जोर से जो नई बात मांग हो रही कि मुझे मेंबरशिप दो, मुझे कुछ दो, और वी वांट टू गो टू द मोहल्ला प्रभारी तक, राइट? क्योंकि जानते क्या है, बेसिकली हम इसको जो आज के जो आईटी और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम उस तरीके से इसे करना ही नहीं चाह रहे हैं, राइट? दैट इज ए एडिशनलिटी, राइट? हम इसको 1-to-1 मैग्नेटिक चार्जिंग के तरीके से कर रहे हैं कि जैसे एक लोहे की छड़ जो है मैग्नेट के नजदीक आती है एंड all particles they get aligned and they get magnetized, right? ये एक मिनट सर, भूपेश जी का नंबर मुझे मिला नहीं अभी। मैंने तो उसी दिन शेयर कर दिया था, दोबारा दे देता हूँ आपको। एक मिनट होल्ड करो, अभी बातचीत करते करते ही दे देते हैं आपको। हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिए सर अभी। एक मिनट आई विल जस्ट डू दैट। हाँ, और वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग, राइट? हाँ, तो मेरा ये सोचना है, एक मिनट,
तो मेरा ये सोचना है कि हमें अब थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, राइट? और चीजों को हम इम्प्रूव करते रहेंगे, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते रहेंगे। और जो हमारे बच्चे हैं एक एक एक, एक जो है ना एक ओथ दें कि जो है ना दे विल कीप इट सीक्रेट, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो दैट जो लोग हैं उसको जो है वो मिसयूज करने का जो है ना कॉन्सेप्ट ना रहे, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो एक मिनट, मैंने आपको भेज दिया है, पहुंच गया है आपको, मिल गया है आपको? I'll just check, sir. 1 minute. हाँ, आपको डिलीवर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि 4 बजे का सब अपन फाइनल करते हैं, राइट? और अपन उसको पार्ट पार्ट में करें कि पहले जो है ना इसका, फिर मर्चेंडाइज का, ऐसे 3-4 पार्ट में करके 10-10 मिनट डेडिकेट करते हुए। नंबर मिल गया मुझे। हाँ, 10-10 मिनट का जो है ना हम बातचीत करके उसको जो है ना आगे बढ़ाएं। डू यू एग्री विथ मी? हाँ सर। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब हमारी रीच बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये आप फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? आप अखंड हिंद पे देखें तो 30-40 हजार लोगों ने जो है ना उस वीडियोस को देख लिया है, बहुत सारे हजारों लोगों ने उसे लाइक भी कर लिया है, राइट? तो नाउ जो है, अच्छा दूसरी बात है, पॉलिटिकल लोग नाउ स्टार्टेड अप्रोचिंग। कल एक डॉक्टर के माध्यम से कोई वहां के महामंत्री दिल्ली के बात कर रहे थे, राइट? सो बेसिकली नाउ पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग थ्रेटन्ड विद अवर इनिशिएटिव। और मैं आपको एक चीज भी बताना चाहता हूं कि जो YouTube पे अपने व्यूज दिख रहे हैं वो जानबूझ के कम दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सामने बैठ के जो है ना मेंबरशिप कराई है, सब्सक्राइब कराया है, और दैट इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन अवर मेंबरशिप। इसका मतलब है कि YouTube पे कोई ना कोई दबाव बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से ट्रू फैक्ट्स आर नॉट कमिंग। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं ना कि हमारी YouTube की चैनल से जो है ना उसके सब्सक्रिप्शन से हम संवाद करेंगे, तो वो बताना चाहते हैं कि आपको कोई ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, राइट? तो ये जो मेंबरशिप अभियान है, यदि मान लो हमारे मेंबर ही 5 करोड़ हो जाएंगे तो फिर उनके जो है ना YouTube चैनल दिखाए चाहे ना दिखाए, उससे हमें हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, राइट? और फिर देन हमारा देयर विल बी पैरेलल कम्युनिकेशन विद आवर वॉलंटियर्स। करेक्ट। और अगर और हमें अब हम बहुत लार्जर ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। क्राइम फ्री भारत बिना एक सिस्टम को बनाए संभव नहीं होगा, क्योंकि ये दुष्ट नेता उसे उतरने ही नहीं देंगे ग्राउंड में। तो हमें इनको बेबस करने की काम करना ही पड़ेगा। तो हम टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते हैं, पब्लिक को जोड़ के एनर्जी भी पैदा कर पाए, एट द सेम टाइम नियम कानून के ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करें। अभी बहुत जल्दी हम एकाध जगह पे अभी हम जो है ना एसोसिएट प्रोफेसर के बतौर आई एम लॉन्चिंग फ्यू सब्जेक्ट, जिसके थ्रू हमें लीगल ड्राफ्ट तैयार कराएंगे। सो वी आर गोइंग वेरी अग्रेसिवली ऑन द ऑल इश्यूज, राइट? नाउ दिस इज ए बेसिकली हमें एक बात समझना पड़ेगी कि हमारे सबके एक्सपीरियंस बहुत खराब हैं, और हम लोग जो कुछ भी जानते हैं वो सब सही नहीं है। वी नो things which are deliberately fed to us and majority of them they are wrong. आपने जो संविधान बनाया है, ये संविधान जो है दादा B.R. अम्बेडकर ने नहीं बनाया है। ये संविधान जो है 7 लोगों ने बनाया है, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू थे, और अधिकांश प्रावधान वही लिए गए हैं जो अंग्रेजों ने कहे गए थे। आपका 80% संविधान जो है ना इज फ्लोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो थोड़े बहुत प्रोविजन दाएं बाएं से कलेक्ट किए हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, दे आर ऑल आल्सो जो है ना पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो जो कुछ भी बन के सामने निकला, यही कारण है कि आपका आर्टिकल 333 भी उस संविधान में है। तो ये बात बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है ना वाज ए मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, जिसमें कुछ आर्टिकल डेलिब्रेट करके रिफाइन किए गए हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास वो आर्टिकल आए कहां से थे, राइट? तो जिस नेहरू जी ने वो आर्टिकल्स बनाए, उसने जो है इवन ड्राफ्ट कमेटी के दौरान भी लंबा जो है ना बढ़ चढ़ के जो है ना हिस्सा लिया, एंड ही इंश्योर्ड दैट एवरीथिंग शुड कम एज इट इज। एंड हमारे नेहरू जी इतने धूर्त व्यक्ति थे कि उन्होंने बहुत ट्रिक खेली। आप ये बताइए कि यदि ये प्रो डेमोक्रेसी और प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग थे,
तो इन्होंने आर्टिकल 35A इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली कैसे जो है वो संविधान में पहुंचा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एंड पार्टी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी कि आर्टिकल 35A जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक दूध पीता बच्चा बता देगा कि जो चीज 1950 में आपका संविधान लागू हो गया, इसके बाद कोई चीज संविधान में आना है तो एक ही तरीका है आने का, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई चीज जो है प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन के माध्यम से संविधान का हिस्सा नहीं बन सकती है। जो आर्टिकल 370 था उसमें यह था कि प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन में एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू द जम्मू एंड कश्मीर, राइट? वो एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना नहीं सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आर्टिकल 370 भी वो पावर नहीं दे सकता है क्योंकि वो पावर है ही नहीं। यदि बहुत विषम और इमरजेंसी सिचुएशन में पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है तो एट द मोस्ट गवर्नमेंट कैन जो है ब्रिंग ऑर्डिनेंस थ्रू द गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, बट इफ दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट देन दिस नोटिफिकेशन विल लैप्स बाय इटसेल्फ। तो आर्टिकल 335A जो है संविधान में 70 साल कैसे बना रहा और हम जैसे विद्वान लोगों के दिमाग में बात क्यों नहीं आई? जो एक दूध पीता बच्चा जो है वो 5 मिनट में डिसाइड कर सकता है, वो चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2014 से जब तक अपन ने उसे हटा नहीं दिया तब तक क्यों नहीं जो डिसाइड कर पाया? आप ये बताइए उसमें ऐसा क्या था, बताइए मुझे। हम और आप ये बात सोच पा रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सोच पाया? और उस 35A के माध्यम से 2 संविधान पैदा हो गए, 2 फ्लैग हो गए हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर पैदा कर दिया। और वो जो है ना जो भी इलीगल प्रोक्लेमेशन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का, उसमें खुद प्रेसिडेंट ने कहा है कि इसमें जो है ना 8 कारण हैं जिससे ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता है। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू, ही हैज रिटन एट दैट टाइम कि मैं आपकी हर बात 8 पॉइंट से सहमत हूं लेकिन आप इसे जारी करें। ये तो शुद्ध दादागिरी हो गई ना। इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ एक्टिंग। जब आपकी फौजें जो है जम्मू एंड कश्मीर में जीत रही थी तो ये चीजें जो है ना, व्हाट इज द सिचुएशन, इट शुड हैव बीन डेलिबरेटेड इन कैबिनेट। ये व्यक्ति बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए जाके ऑल इंडिया रेडियो में जाता है और कहता है कि साहब जो है ना हम सीज फायर कर रहे हैं, जब आपकी फोर्सेस जीत रही हैं और एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान ने घेरा हुआ है। हेलो, एक बड़ा हिस्सा जो है ना पाकिस्तान ने घेरा हुआ है, तो हम सीज फायर खुद क्यों किए? हम क्यों यूनाइटेड नेशंस में गए? हमने क्यों प्लेबिसाइड की बात की? और ये सब मुद्दे जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ना पहले कैबिनेट में डिस्कस होना चाहिए था ना। It is a hardly autocratic way of his handling. Nobody had criticized it. He is the creator of all the problems. अब आप ये बताइए कि नेहरू के समय में जब भी चुनाव हुए, एक तो जो है ना उन्होंने ये वाला किया, मुस्लिमों को जो है ना प्लीज करने वाली बातें करके जो है ना उनका वोट बैंक को यूज किया, एंड ही यूज द मुस्लिम्स एज ए वोट बैंक, राइट? और आप दूसरा देखिए कि उन्होंने जो है चुनाव व्यवस्था क्या थी कि जो है ना आप बूथों की रिगिंग करो, फलाना करो, ये करो, वो करो। आप जो है ना एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लाए, उसमें आपने पार्टियों की जो है पूरा डिफाइन क्यों नहीं किया? व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, व्हाट इज इलीगल, व्हाट शुड बी द क्राइम, व्हाट शुड इज उसको जो है ना उसका जो फ्लो ऑफ फाइनेंसेस है उसके ऊपर मॉनिटरिंग एंड फ्लो ऑफ फाइनेंसेस के ऊपर टैक्स, ये सब क्यों नहीं रखा गया? ये सब दुष्टताएं हैं। यदि हम इन दुष्टताओं पे बात नहीं करेंगे तो हम क्राइम फ्री भारत भी पैदा नहीं कर पाएंगे, समृद्ध भारत भी पैदा नहीं कर पाएंगे। डू यू एग्री विथ मी? हाँ सर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। हमें जो है ना इन मुद्दों पे चर्चा करना ही पड़ेगी और इसे जन ज्ञान में लाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम में से जो लोग को बहुत अच्छा काम करना चाहिए वो सब अपने फायदे की बात सोच रहा है। एक रिटायर्ड व्यक्ति जिसका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, उस समय जो ना वो उसके हाथ बंधे हुए थे, अब यदि वो सब बातें समझने लगा है तो ही शुड स्टैंड विद अस।
लेकिन वो तो जो है ना गोल्फ खेल खेल के अपना पास टाइम बताना चाहता है, वो तो जो है रमी खेलना चाहता है, 3 पत्ती खेलना चाहता है, मंदिर में सत्संग करना चाहता है और बेबी सिटर बनना चाहता है। यदि वो जो है ना इस तरीके के अभियान से राष्ट्रीय निर्माण का काम करेगा तो उसका जो है ना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उसकी जो एनर्जी है वो भी बनी रहेगी और उसने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। ही इज नॉट डिपेंडेंट फॉर एनी फाइनेंशियल थिंग। A retired person or elderly person or a senior citizen, they could be better resources for the crime free Bharat than the even youngster jo ki they are also struggling for their livelihood. Their careers are not made out. उनको अपना कैरियर की भी चिंता पालना है, जो वो डिग्री कर रहे हैं उन्हें डिग्री की भी चिंता पालना है, उन्हें उसके बाद नौकरी की भी चिंता पालना है। लेकिन हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनको क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं है। यदि वो जुड़ेंगे तो उनका प्रभाव क्षेत्र भी ज्यादा होगा, उनकी एनर्जी भी सकारात्मक होगी एंड दे वुड बी इन पोजीशन टू डू ए बेटर जॉब। डू यू एग्री विथ मी? हाँ सर। तो हमें ये एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगी, हमें लोगों को जगाना पड़ेगा। वी मस्ट बी वेरी रिलेंटलेस इन आवर अप्रोच। तो 4 बजे मिलते हैं फिर। हाँ सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर। ओके, बाय बाय। बाय।